and I'm becoming a parcel of you. I was also a student some time back, and I felt very happy becoming a student, going to the college. And once I went to my engineering college, then my parents said you will be there for some time, and coming back home, hey, I have given you birth, I have given you energies. Okay, you are the product of India. Make India great. So that was the thing I started, and I said, make in India, 20 years back. 20 years back, I said we have to get sustained. We should be self-sufficient. The students here are the missiles of tomorrow. You are having so much of knowledge, you are having so much of patience, and such a beautiful career. In this way, this is our country. We have to come to the rescue of the motherland in the hour of need. If you just study and go back and say, Mama, I got a certificate, India does not require such students. India requires students who are lethal in their mindsets. They should produce results, and they should make themselves equipped with proper intelligence. Here, I want to present one man, that is me, Chagati Bhaskar from Telangana region, has made a dent in the innovation sector. Today, I present you how to generate electricity in an efficient manner. In a manner where self-sufficiency is ruling every part and parcel of the country. Every nook and corner can get their own electricity. You don't have to depend on solar, wind, geothermal, thermal, nuclear, hydro. In these sectors, you don't depend on any of these things. You have knowledge and you can do it. That is the system what I have developed from my rigorous 20 years of innovation time. So here, gentlemen, I am presenting you my case of power generation using cascading systems by using water, or the water which has already been used, that is useless water for the human consumption, or you can use it from the sea. Water is water, but we should not discriminate between water which is hygienic and unhygienic. It is not the criteria for power generation. For drinking, it might be a problem, but not for the turbine. Turbine does not have all these discriminations. It can run on any of these particular parameters of water is water. That's all. So now, gentlemen, we are using a particular system called challenges in the environmental science and technology. What is the challenge? How the challenge has to be dealt? What is the answer for this particular system? Today you all have a challenge in the environmental science and technology. This is the question, this is the burning question, what has been given to the entire universe. In Paris, every country said, global warming, global warming, global warming. But where is the global warming? Global warming is nowhere, it is not there in the technology, okay? If you have a perfect technology, you can erase global warming. That is the Indian challenge, where the Indian can take up the entire challenge of global warming. One technology for many uses, one technology for multiple applications, one gentleman for this entire universe. That is Lord Krishna. Lord Krishna gave me the energy to do the system over here. So in this way, the most important environmental issues facing on our planet, 1 billion people are far away from the basic necessities of human existence. That is, they don't have water, they don't have food, they don't have a proper place to live. That is the pathetic condition where we are all going inside. And we say Ramayana Mahabharata. No. अगर फ्लड आता है, रामायण महाभारत पढ़ने से कुछ नहीं होता. आपको स्विमिंग आना चाहिए. You should know how to swim in the time of emergencies. So today, the faculty of here, what I request is, all the students should be equipped with proper education, motivation. Okay, the education should be coming in such a way that it should be helpful to the motherland, not for 30 days salary.
30 days salary, anybody can do it. A beggar is doing 30 days begging. But we are going into the essence of saving the country in the times of emergencies. You are all there. You are all the well-wishers of this country. You are taking your parents' energy, your parents' money. The teachers who are teaching you, I mean, they are giving you the best of the best knowledge. So what they expect from you is a little help to your own village, to your own system, to your own house. A small help. Silently, Mother Earth is asking, help me, help me, help me. I am deteriorating, I am dying. And we all talk about 2 cell phones, 3 cell phones, 100, I will say, minutes wasted in seeing pictures. Hundreds of minutes we talk about unnecessary topics. आज आप क्या खाया है? अरे बॉस, मैंने आज गुलाब जामुन, इससे कुछ बनता क्या? इससे कुछ होता क्या? मां धरती यहां तड़प रही है, कहीं बरसात नहीं हो रही है, कहीं कुछ आदमी सुसाइड कर बैठा है। इस आपातकाल में आप स्टूडेंट्स के कंधों पे एक विश्वास लेके भारत बैठा है कि कुछ कीजिए। आप स्टूडेंट्स के अंदर जो ताकत है, वो क्षमता है, सोचने वाली आदत है, उसको बढ़ा दीजिए। You all are perfect missiles for the time to be executed. In this particular system, I recommend again and again, all the ladies, all the girls, all the gents, all the boys, you are all coming from one particular system called Bharat. In this Bharat, every nook and corner is suffering today. Kindly rise, kindly rise. That is Vivekananda. What Vivekananda said, rise to your challenges. And we are all here to help you out in this particular system. I am there to help you out to phrase out how we can generate energy. And once we are back again to this particular system, all population demanded pollution from industry to be blamed. No. This is all done simply in the Google. I have copied from the Google this particular system, but that is only a question. We have to give an answer. If you say 1 billion people are far away from the basic need, हो गया क्या? खत्म हो गया क्या वहां पे? नहीं, वहां से शुरू होने वाला है अपना युद्ध। अपना युद्ध किस में आता है? अनाज पैदा करने में आना चाहिए, पानी सिंचाई में होना चाहिए। आदमी जब मरता है तो ले जाके उसको हॉस्पिटल में दिखलाने के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज होना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन इन एवरी पर्टिकुलर टाइम, एरा एंड सिस्टम। 2000 में भी है, 20,000 BC के अंदर भी है, और दूसरी और कुछ BC भी है, 80,000 लाख साल के बाद भी यही सिस्टम आदमी मांगेगा। आदमी लालची होता है, लेकिन लालची किस बात की होता है? अपना खुद सिस्टम को ऊपर लाने के लिए। इसमें गलती किया जाता है। आदमी क्या बोलता है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सिस्टम, ले जाके कचरा वाले फेंक दिया। बोलेगा कि मैं 30 दिन का सैलरी में देता हूँ कचरे वाले को उठाने के लिए, और वो कचरा वाला आया उठाया। इसके अंदर ये सिस्टम को तोड़ना चाहिए। अपने गार्बेज को अपनी घर में जला के शुद्ध वातावरण को बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए we should have a technology to burn the garbage inside the home that we have developed. हमने डेवलप किया है ऐसे सिस्टम को। आपके गार्बेज आप ही के अंदर बिना धुआं निकले, बिना आपका कुछ खराबी सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि बोलते कि बासी खाना है, उसको जलाने से कुछ दुर्गंध आएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। ये सिस्टम में एक सिस्टम बनाया हमने, जिसके साथ बिजली का उपलब्धि के साथ आपका गार्बेज आपको जला सकते हैं और वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। ठीक है, अब वापस करते हैं अपन ओवर पॉपुलेशन डिमांड पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्लेन। तो इसके नीचे आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किसके लिए होता है? आदमी सर्वाइवल के लिए होता है। आदमी सर्वाइवल रहे तब ये दुनिया रहती है। तो इसके मतलब ये है कि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अगर कहां से आता है? इतने सारे अपने आसपास के जो हिल्स हैं उसके अंदर एक भी झाड़ लगा नहीं है। जो झाड़ लगा है मुरझा जा रहा है क्योंकि पानी नहीं है। वो पानी को कैसे वापस लाएं और उस धरती को कैसे हरियाली बनाएं, ये एक साइंटिस्ट के अंदर होना चाहिए। आप सभी छात्र जो है, आप सभी स्टूडेंट
सिस्टम को लेके आगे जाना है, you should make yourself so equipped that you should be in a position to command today the nature, not yourself. प्रकृति को कमांड करने का आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं। तो इस माध्यम से अपन बोलते हैं ओवर फिशिंग का सिस्टम ये होता है कि कोरल होता है, कोरल समुद्र के अंदर कोरल होता है। जब कोरल होता है तो मछली आते हैं, कोरल जब मर जाता है तो मछुआरा दूर जाके मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो इस सिस्टम के अंदर साइंटिस्ट क्या करता है, आदमी जाके सो जाता है अपने सिस्टम के अंदर, लेकिन मैंने कोरल के ऊपर काम किया, ब्लीचिंग के ऊपर काम किया। ब्लीचिंग इन द ओशन इज अ कॉमन फिनोमिनल फैक्टर विद द फाइटोप्लैंक्टन्स डाई। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं छोटे कीटाणु के जैसे झाड़ होते हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन इज द ओनली एप्लीकेशन where we are getting oxygen. अपने को ऑक्सीजन मिलता है समुद्र से मिलता है, झाड़ से नहीं। झाड़ एक माध्यम है। झाड़ में कितना है, बहुत छोटा है। पानी कितना है, सारा धरती पड़ा है। एवोल्यूशन जब हुआ था झाड़ थे, आज बोल रहे कि ऑक्सीजन झाड़ से मिलता है, झाड़ मत काटियो, झाड़ कहां से होता है? जब पानी सारा धरती के ऊपर बन रहा तब फाइटोप्लैंक्टन का एक सिस्टम से, उसके माध्यम से एक छोटा अणु से सारा ऑक्सीजन बाहर निकलने लगा है। बाहर निकल के आज ये सिस्टम परिवर्तन हुआ है। और पानी जब हाइड्रोजन में, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं हाइड्रोजन बनाओ, हाइड्रोजन के जरिए आप व्हीकल चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, वो चला सकते हैं, ये चला नहीं। जब हाइड्रोजन बनती है 10 to 15% of the burnt hydrogen will escape out of ozone. उसके माध्यम से अपना धरती में पानी एकदम थोड़े साल के बाद कुछ भी रहेगा नहीं। सो हाइड्रोजन के ऊपर जो काम करते हैं वो बहुत गलत है। That will never take you to the destiny what you are. So इस माध्यम से मैंने सोचा हाइड्रोजन भी गया तो मैं किसके ऊपर काम करूं? मैं सोलर नहीं है, विंड नहीं है, क्योंकि सोलर के लिए 5 एकड़ चाहिए, 1 मेगावाट के लिए 5 एकड़ चाहिए। तो मैं सोचा अब 5 एकड़ की धरती बेकार में पड़ा है। और विंड में देखा 1000 मेगावाट के लिए 164 या 167 स्क्वायर माइल्स का जरूरी होता है धरती का। 167 स्क्वायर माइल 1000 मेगावाट। आप लोग थोड़ा स्विच डालते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, बहुत आसान से कर देते हैं, लेकिन बिजली जब पैदा होती है तो बहुत क्षमता से पैदा होती है। तो इस तरह से आपने जो बिजली बनाया और उसको बचत करने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि बचत मत कीजिए और दिन दहाड़े जो करना है कर लीजिए। हम स्टूडेंट हैं, हम छात्र हैं, हम करके दिखाते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है, एक भारत कर सकता है। तो इस माध्यम से हमने बोला लालची नहीं रहना चाहिए, भारत लालची नहीं है, भारत सोने का चिड़िया है। भारत के अंदर कभी भी दिया जाता है, लिया जाता नहीं। तो इस माध्यम से हमने जो टेक्नोलॉजी बनाया, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारा हिंदुस्तान नहीं, सारा दुनिया एकदम रोशनी से भर जाएगा। तो इस तरह से देखा गया तो आदमी जब क्वेश्चन करता है तो क्वेश्चन में डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर फिशिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस तरह से होता है? ये कुछ नहीं होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन वापस बढ़ भी जाता है। थोड़ा सिस्टम के लिए ब्रीदिंग टाइम चाहिए। ये ब्रीदिंग टाइम अगर अपन प्रकृति को देते हैं तो वापस ओजोन लेयर अपने आप बंद हो जाता है। उसके फिक्र कोई नहीं करना, ठीक है। पोल्यूशन एंड ड्रॉट तो मेरा अलग केस है और बाजू वाले का केस है। मैं भी बोरवेल डाला, वो भी बोरवेल डाला, बरसात में नीचे पानी ऊपर आ गया, ऊपर पानी भाप हो गया, नीचे पानी खत्म हो गया। तो इसके साथ क्या हुआ? अकाल हो गया, अकाल। इसके अंदर एक भी आदमी सीधा जीने का प्रमाण नियमित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अनाज नहीं होता है और अनाज नहीं होने से भूखा मर जाता है। इस सिस्टम को रोकने के लिए उसका भी हमने एक तरकीब निकाला और सॉल्यूशंस विद डॉक्टर भास्कर। सो दूसरी बात है, ये जो वाटर एच्योरिंग
सेफ्टी एंड सफिशिएंट वाटर। हर एक आदमी को जीवित प्रमाण एटलीस्ट पर डे 100 to 500 लीटर ऑफ वाटर होना जरूरी है। क्या मिलता है सभी को? आज जो मिलता है 20 लीटर वाली एक कैन और 20 लीटर वाली सिस्टम, उसको खरीदने के लिए अपना पैसा सारा डालते हैं और वापस जाके बोलते हैं बॉस मैं सादा पानी पिया तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ये बहुत गलत है। तो इसके माध्यम से हम लोग ने डिसाइड किया कि वापस पानी आपके टैप्स में भरपूर आने वाले हैं और सीधा सीधा वो टैप को ओपन करके रखना, बंद नहीं करना। इतना पानी आएगा, इतना पानी आएगा, सिर्फ आप जय श्री कृष्ण बोलना, वो कृष्ण करेगा, मैं नहीं करता हूं, मैं माध्यम हूं मैं। तो दूसरी बात है जो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये जो हर कॉमन सेक्टर में होता है, लोग बोलते हैं, अभी भाई साहब बोले हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग, ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ह्यूमस कैसे 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 बनता है ह्यूमस। मैं भी एक किसान हूं, मेरा भी बहुत धरती है, मैं भी बहुत हजार एकड़ के ऊपर लीज लेके मैं भी काम किया, मैं भी मेरा हल चलाता हूं, मेरा गाड़ी चलाता हूं, मैं फिजिकली मेरे खेत के अंदर काम करता हूं। मैं आई एम ए साइंटिस्ट, मेरा टरबाइन मैं डिजाइन किया, मेरा पंप्स मैं डिजाइन किया, मेरा हल भी मैं चलाता हूं, मेरा घर में मेरा रोशनी भी लाता हूं मैं। तो इस तरह से मैं आपको एक ही निवेदन करता हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, आप कस के आपका सिस्टम बनाइए, आप अच्छा पढ़िए, आपके मम्मी डैडी को अच्छा नाम लाइए। यही हम आपके साथ एक अच्छी तरह से एक छोटा सा रिवॉर्ड पूछते हैं। तो दूसरी बात है, यहाँ क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम global warming protection are helped by preventing pollution, reducing toxic emissions and greenhouse gases। ये होता है क्या? आपने एक इंडस्ट्री लगाया, होता है क्या ये नहीं होता है, साल से नहीं है। इसके अंदर हर एक कंपनी अपना अपना सिस्टम बनाने के लिए बिजली यूज करता है, बाय प्रोडक्ट होती है, बाय प्रोडक्ट सीधा नाले में जाता है और नाला जाके गंदगी सिस्टम में चला जाता है। ये आदमी उस आदमी का दोष है जो पूछता नहीं, वो बोलता है कि हम सीवरेज कैनाल में जाते हैं और उसके बाद बाहर जाके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। वाह, घर में इंसाफ नहीं है, बाहर जाके इंसाफ, ये कहां की बात है? तो आपका फैक्ट्री है तो उसके लिए हमारा पास तरकीब है, बिजली है, ये बिजली के माध्यम से आपके फैक्ट्री में ही अभी नया परिवर्तन के साथ आपका सिस्टम धोके पानी को अलग करके पानी को बाहर भिजाया जाता है। ये बहुत जल्दी आप सब लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरी सिस्टम है एनर्जी क्रिएटिंग एंड क्लीन एनर्जी फ्यूचर। आप सब लोग देखे हैं एनर्जी एनर्जी एनर्जी, किधर है एनर्जी? सोलार में है क्या तो 4 घंटे चल के 5 घंटे गायब हो जाती है। विंड में है क्या? फैन के नीचे रखना, यहीं पे धरती के नीचे, यदि हवा नहीं आता दूर दूर झोंका कैसे आएगा? गर्माहट में एकदम भी गर्माहट और उसको ठंड करने के लिए झाड़ भी लेगा नहीं, क्योंकि उसका एनर्जी उसको बचाना है। इस माध्यम से अगर देखा गया तो हाइड्रो है, न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर माइनिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। न्यूक्लियर माइनिंग में इतना प्रॉब्लम है, इतना पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन को निकाल के बाहर लाने के लिए आपके पास कोई तरकीब नहीं है, सिर्फ धोखा है। अगर हार्ड वाटर ज्यादा से हार्ड हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन किया जाता है। यही हार्ड वाटर अगर आईएसआई को मिल जाता है तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। इस तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी मैं पसंद नहीं करता। इस तरह से देखा गया तो भी बाकी बचा गया कोयला है। कोयले को उठाने के लिए कितना बिजली होना चाहिए, ये कोई सोचा गया? 2 रुपया 40 पैसे में बोलते हैं हम गवर्नमेंट खरीद गए, लेकिन लाइन डालने के लिए कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हुआ। एक एक सिस्टम को बाहर लाने के लिए कितने लोगों का बलिदान करना पड़ा। क्या 2 रुपया 50 पैसे में होगा? मैं बोलता हूं 2 रुपया 50 पैसे क्या, हमारा टेक्नोलॉजी में हम 1 रुपया में देंगे। 2 रुपया छोड़ दीजिए, हम 1 रुपया में बिजली देंगे सारा हिंदुस्तान को। क्या लेने का क्षमता है इनके पास? क्या इनके पास अधिकार है कि ले सकते हैं? ये हमारी क्वेश्चन है, मुद्दा है। हम देने के लिए तैयार है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सिस्टम है, वही आपको हम आगे जाके बताते हैं। तो इसके साथ साथ न्यू एंड इंप्रूव बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल प्रोडक्शन में मैंने काम किया है। अगर आपको बायोफ्यूल का सिस्टम होता है, अनाज के लिए धरती नहीं है, बायोफ्यूल के लिए कहां से धरती है? बायोफ्यूल कैसे ग्रो होता है? बायोफ्यूल एक सीधा यानी एक बुजदिल वाले बोलने वाली बात है।
जो नहीं कर सकता है ना, आगे पिछली पतली गली से भागने की कोशिश करता है। हम वैसे नहीं है, हम भारत में, हम आप छात्र जैसे, मैं भी छात्र था, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, बुक्स पढ़िए और आपका काम कीजिए, वो अपने आप आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़िए, अच्छा मार्क ले आइए, और मम्मी डैडी को बोलना मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये कभी भी आप जाना, अब बोलना। आज भी मेरे माँ के पास जाता हूँ, मेरे माँ के पैर छू के बाहर जाता हूँ मैं, अभी भी मैं बोलता हूँ, मैं माँ मैं आज आके यहाँ बात कर रहा हूँ, ये गुफ्तगू होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये चीज आप अवलंबन करें, ये चीज आदत करें। तो दूसरी बात है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन, रिसोर्सेज ऑफ वेस्ट कंजर्वेशन। वेस्ट कुछ भी नहीं है, वेस्ट सोना है, वेस्ट कुछ भी नहीं है, वेस्ट सोना है। हम जैसे साइंटिस्ट को वेस्ट सोना हो जाएगा, इस माध्यम से हम इसको फर्टिलाइजर बनाते हैं। हमने एक सिस्टम तरकीब अपनाया, फ्रांस में हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, एक 5 एकड़ का हमने बिल्डिंग बनाया, उसके अंदर हमने एक सिस्टम को ऐसा बनाया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में एक हो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड में एक हो, 300 में एक हो, 500 में एक हो, 1000 में, इस तरह से हमने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया और उसके अंदर कचरा डालना शुरू किया। बाहर निकला क्या? साफ पानी। इवन आपको राख भी नहीं मिलेगा। सो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ढूंढना कोशिश करना, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन सभी लोग करते हैं, क्वेश्चन पूछते करता है, सामने बैठा है शेर, उसको आंसर करेगा और उसका तरकीब निकालेगा। ऐसा रहना चाहिए भारतवासी, आप सब छात्र ये चीज को डेवलप करें। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, आप डेवलप करने के बाद इस यूनिवर्सिटी को बहुत नाम आएगा और ये नाम आके भारत को नाम देगा। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप सब लोग कस के पढ़िए और अच्छा नंबर से पास हो जाइए। और दूसरी स्लाइड, towards a reliable future, how people preserve or abuse the environment could largely determine whether living standards improve or deteriorate. Growing human numbers, urban expansion, resources exploitation, ऐसा मैं पढ़ के बोल सकता हूँ, रट के बोल सकता हूँ, आप सब देखते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। मेरे को गूगल से कुछ लेना देना नहीं है, मैं खुद करता हूँ, मैं खुद करना चाहिए। आप भी वो कीजिए, आप भी मेरे जैसे बनते हैं। अब दूसरी सिस्टम है, मैंने आपको एक पेपर प्रेजेंट करने का सिस्टम बनाया था, चैलेंजेस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्रेंस पेपर फॉर कैस्केडिंग पावर जनरेशन इनसाइड पैराबोला कैनाल। आप सब लोग देखे हैं, कैनाल सीधा सीधा जाता है, मैंने कैनाल को ऊपर उठा दिया और बोला कि तू यहां से चल। तो कैनाल को मैंने ऊपर उठा और बोला ऊपर से चल। अगर मैं पानी को यहां से यहां उठा दिया तो इसका हाइट कितना है? 3 मीटर है। अगर मैं यही डायरेक्शन में काटा, इसका लेंथ कम से कम एक 50 मीटर है। 50 मीटर सिस्टम ऐसा बनता है कि कैस्केडिंग सिस्टम ऐसा जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर का हिस्सा रूफ बनेगा, रूफ के ऊपर कैनाल होगा। तो ये कैनाल का माध्यम से आप जितना बिजली बोले उतना निकाल सकते हैं। 24/7 आपको बिजली मिलते ही रहेगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा इसके अंदर, और एम्प्स भी आपको सही मिलने वाले हैं। और दूसरी मान्यता ये है कि ये पानी 5% से 10% इवापोरेशन होके सालाना एक ही पानी को रोटेट किया जाता है। यही पानी के माध्यम से बिजली होते होते वापस रोटेट होते रहता है। इसको कैस्केडिंग सिस्टम बोलते हैं। मुझे भी E=mc² मालूम है, मेरे को भी डॉक्टरेट है टरबाइन डिजाइनिंग में, मैं वर्ल्ड क्लास टरबाइन डिजाइन किया हूं मैं, एरोफॉइल प्लेट, हाइड्रोफॉइल प्लेट्स। आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू डिजाइन एरोफॉइल एंड हाइड्रोफॉइल प्लेट्स, टरबाइन प्लेट्स इनसाइड द मूविंग वाटर और द फ्लोइंग वाटर व्हिच इज इनसाइड द पाइप्स। मैंने किया है और मैंने सक्सेसफुल भी हुआ है। तो दूसरी बात है, तो यहां जाके वीडियो अभी मैं वीडियो बताता हूं जो मैंने किया। मेरा पंप है, नहीं, ये भारत का पंप है, ये आप सबका योगदान है, आप सबका आशीर्वाद है, जिसके माध्यम से आप सब लोग जाते हैं और बोलते हैं भगवान हमारी धरती को बचा, भगवान ने मुझे चुन लिया आपके माध्यम से। तो ये सारा चीज आप लोगों का, मेरा नहीं है।
सो इस तरह से ये पंप जो कब मैंने आपको प्रदर्शित किया था वहां पे, ये पंप है 1 HP, 1 HP में हेड होता है फ्रॉम सक्शन टू डिस्चार्ज। यहाँ पे इंजीनियरिंग शास्त्र को मालूम होना चाहिए कि सक्शन क्या होनी है और डिस्चार्ज क्या होनी है। सक्शन is the from the ground level or the zero level where the suction takes place of the bottom side of the pump and it will be discharged to the top side from an outlet which is designed for the total head. So total head is 30 मीटर है, 30 मीटर है। 30 मीटर के अंदर पानी ऐसा भार से निकलता है 1 HP का, ये 1 HP which is doing a work out of 5 HP। एक और पंप मैंने बनाया 7.5 HP का 1 HP के अंदर। एक और पंप मैंने बनाया 22 HP का 5 HP के अंदर, यानी आपका 1,08,000 लीटर पर आवर डिस्चार्ज करेगा 9 आर्म्स लेके। 1,08,000 लीटर पर आवर डिस्चार्ज करेगा 9 आर्म्स लेके, यानी 3.7 किलोवाट का पंप, यानी 5 HP का पंप जो क्षमता करती है सिर्फ 5 लीटर, मेरा पंप करता है 30 लीटर। 30 और 5 में बहुत अंतर है। ये सिर्फ मेहनत से किया जाता है और मेहनत कैलकुलेशन से किया जाता है और किसी के लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स सीधा सीधा पढ़ लीजिए, आपको भी आएगा। बहुत छोटी सी बात है, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना और मैथमेटिक्स को आप टेक केयर करना है, छोड़ना नहीं, जिद्दी से पढ़ना जरूरी है। याद रख लीजिए, ये पंप जो है ओपन वेल सिस्टम के अंदर है, जो खेती बाड़ी के लिए यूज होती है, किसान के लिए यूज होती है। ये सिस्टम के अंदर आपने 22 मीटर का सिस्टम बनाया और इस सिस्टम के अंदर आप 5 HP सिस्टम के साथ कंपेयर करने से 1 HP मेरा होगा। ये 1 यूनिट लेता है, ये 1 यूनिट लेके 5 लीटर प्रति सेकंड डालता है। तो इस तरह से साथी जी, यस सर, यस सर। तो ये है और ये पंप के बाद दूसरे पंप है, अब निकालिए। तो मैंने जो सिंचाई की बात किया है, सिंचाई का बात, ये सिंचाई मैंने बहुत सारा पैसे डाला है इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने इसको लिया है, ये सारा सूर्य अस्त होने का समय है, सूर्य अस्त, जहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इट इज ए सेटिंग सन टाइम एंड वी डोंट गेट एनर्जी टू रन द मोटर। मोटर में सर्ज होता है, सर्ज के माध्यम से मोटर चल नहीं पाता, लेकिन हमने उस मोटर को बनाया जो बहुत थोड़ा सनलाइट लेके भी पूरा सिस्टम के अंदर 24/7 के सिस्टम से काम करेगा। ही ऐसे हमने मोटर बनाया। ये 1.6 एम्प्स मोटर है, बहुत कम सन अवेलेबिलिटी है, एम्बिएंट टेम्परेचर इज वेरी लो। इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम आल्सो हमारे सिस्टम के अनुसार हमने 1.5 किलोवाट सोलर पैनल के साथ 1.5 किलोवाट सोलर पैनल के साथ 5 किलोवाट का सिस्टम बनाया। 5 किलोवाट अगर लगाते हैं तो 3.7 किलोवाट का पंप चलता है। मेरा 3.7 किलोवाट को वापस बोलता हूं मैं 1 HP में डिजाइन किया और 1 HP में जाके ये 1.5 किलोवाट सोलर पैनल से ही चलता है। बहुत छोटा है, बहुत आसान है। तो इस तरह से देखा गया तो आपको 5 लाख लगता है अगर एक सोलर पंप लगाए 3.7 किलोवाट का, 5 लाख लगता है। मेरे अंदर 1.5 लाख लगता है। इतना अंतर है। वही टेक्नोलॉजी है, वही ह्यूमन है, वही थिंकिंग है, लेकिन थिंकिंग इज डिफरेंट। सो दूसरी बात है पीपीटीज करते हैं तो इसके अंदर वापस पंप के अंदर चले जाना, पंप के अंदर हाँ वीडियो निकालना बहुत उधर। हाँ, दिस इज a wonderful plan. This is a wonderful plan linking all the rivers, every river by just a pump. एक पंप के माध्यम से सारा पानी जो समुद्र के अंदर जाना है उस पानी को वापस हम ले आते हैं और उस पानी को ले आने से every state can get 100 TMC of water every year. 100 TMC को वापस पर ला सकते हैं और लाने के बाद सिंचाई होती है, पीने के लिए पानी आता है, जानवर के लिए भी पानी होता है और
फॉरेस्ट भी बन जाता है। इस तरह से धरती में जो अफरा तफरी हो रही है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और these things are there। हमने बहुत मेहनत किया है, एक प्रोडक्ट के पीछे नहीं, हजारों प्रोडक्ट के पीछे किया है। एक आदमी छोटा सा टाइम, वापस करो दूसरा। मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस आर बीइंग प्लान्ड, बट सच क्लियर आवर जनरेशन इन कैनाल। ये कैनाल है, इस कैनाल के माध्यम से हमने क्या करते हैं, हम यहाँ एक बल्ब टरबाइन लगाते हैं। बल्ब टरबाइन के माध्यम से जब पानी नीचे आता है तो यहाँ सिस्टम बल्ब टरबाइन के माध्यम से यहाँ बल्ब टरबाइन लगाया जाता है। ये बहुत अनोखा सिस्टम है, दुनिया में कहीं नहीं है कैस्केडिंग सिस्टम। आई एम द ओनली गाय लिविंग इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सो यहाँ पे बल्ब टरबाइन दिया जाता है। ये बल्ब टरबाइन का डिजाइन भी मैंने किया है। 60 आरपीएम में घूमता है। 20 मेगावाट का 40 मेगावाट का जनरेटर टरबाइन होता है जो 60 आरपीएम में घूमता है। यहाँ घूमने के बाद इसका पानी नीचे आता है और तेज डिस्चार्ज दूसरी सेक्टर में जाके पूरी तरह से भर जाता है। सो इस तरह से अगर देखा गया तो सेकंड हेड भी हो गया, दूसरा हेड है। बिकॉज दिस इज गोइंग इन ए पैराबोला, नॉट वर्टिकल फॉल। वर्टिकल फॉल और फ्लो में बहुत अंतर है। नेक्स्ट, ये जो है एक सेक्टर, एक कैनाल में जो पानी जाता है उसको सेव किया जाता है और सेव करने के बाद हेड भर जाता है। तो इस तरह से वाटर का एक नाला है, नाले के बाजू में ये जो छोटा सा नाला बनाते हैं तो पानी यहाँ से आता है और यहाँ पावर जनरेशन सेक्टर बनता है। तो ये कैस्केडिंग सिस्टम्स होती है और कैस्केडिंग सिस्टम्स के अंदर हमने ये सारा प्रैक्टिकली किया है। ऐसा नहीं कि माइक दिया बात किया, ऐसा नहीं, हमने प्रैक्टिकली किया। तो इस तरह से नाला है और दूसरी बात हाँ, इस तरह से आता है आपका नाला, इस तरह से रहता है। एक एक जनरेटर होता है, एक एक जनरेटर सेम हेड लेके जाता है। सो दिस इज इन अ कैस्केडिंग सिस्टम। और ये जो हमने बनाया है ये आपका 2 किलोमीटर एरिया में आपको 1000 मेगावाट एवरी आवर बनने का चांस मिलता है। Every hour you can generate 1000 megawatt in 2 kilometers area. The width is 10 meters, depth is 6 meters, the parabola height is 30 meters. You can generate 1000 megawatt in this particular system. अगर कैनाल के बाजू में चलता रहे, उस कैनाल के बाजू में जो गांव है, जो सिस्टम है, सभी को बिजली मुफ्त में क्या सस्ती रेट में, अफोर्डेबल प्राइस में दिया जाता है। किसान को खेती बनाने का बहुत आसान तरीका होता है, पीने का पानी आता है। सब इस तरह से देखा गया, जीवन संतुष्ट रहता है। नेक्स्ट वन। Arul Master has been concluded because we have like Okay, thank you. I'm part and parcel of you, and I'll be here if permitted by the lordship, by the system. So यहाँ से अगर इनका आशीर्वाद है, मैं आप ही के पास रहता हूँ, मैं आप ही के साथ रह के थोड़ा काम करता हूँ मैं। और ये शुभ अवसर में जो मुझे काम मिलने वाला है, तिवारी जी का जो ब्लेसिंग है, और इस तरह से अगर मैं आप लोग के बीच में खड़ के काम करता हूँ तो आपको भी मैं कोशिश करूंगा मेरे जैसे बनाने का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पेशेंस के साथ खड़े हैं और सबको मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे बुजुर्ग हैं, हम खड़ा करके स्टेज पर हैं। जय श्री राम।